Hello students, welcome back once again to another video session. So students, today we discuss the same topic that we have started yesterday, but but today we take the sub part which is different from yesterday main part. Today we talk about the role of computer in education or the use of computer in education. Both are same thing. If in your examination the question will ask about uh, two different question, if the examiner will ask what is the role of computer in education, that is the first one. And the other question, if it will ask what is the use of computer in education, then you all will write the same answer for both the questions, which I will discuss with you today. So let's start to our topic, that is role of computers in education or in teaching learning process. As you all know that yesterday we have taught about what is computer, then what is hardware and software, what are the structure of computer or different structure of computer. Then we move to the other part, that is how the uh, computer use how we use the computer in teaching learning process or in education. There are there are three ways in which we use the computer, uh, as an instruction or as a device or as an instrument or as a tool that helps to that helps in our education, or we can say that helps that helps to ourselves in accomplish our educational goals or purpose. So we have studied about the three different components, that is first one is CAI, which we called computer assisted learning. In Hindi we can say that computer sahayak anudeshan. Then we taught about the computer based teaching या training, that means that we call in Hindi computer आधारित प्रशिक्षण या शिक्षण. And the last one we talked about the CML, that is computer managed learning, or Hindi we can say that computer prabandhan adhigam. Now today students we talk about the role of computer in education or in teaching learning process, or the, as I said earlier, use of computer in education or in teaching learning process. In Hindi we can say that कंप्यूटर की भूमिका शिक्षण सॉरी शिक्षा में कंप्यूटर की भूमिका, और कंप्यूटर के उपयोग शिक्षा में कंप्यूटर के उपयोग, और शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की उपयोगिता. If these three questions will ask in your examinations, then you all have to write the same answer. Okay, समझ में आ रहा है ना आपको? Okay, so we start our topic today. So I am now going to read the first line which is displaying on your screen. Computers have brought revolution in teaching learning processes.
कंप्यूटर ने रिवॉल्यूशन क्रांति लाया, मतलब कंप्यूटर के आने से काफ़ी कुछ क्रांति और बदलाव आया हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। आपको पता होगा पहले के समय में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया थी वो आपके आश्रम पद्धति थी। आश्रम में जो राजकुमार या राजकुमारी होती थी वो कुछ उनकी 7-8 साल की अवस्था हो जाती थी तो उसके बाद उनको भेजा जाता था। उनके जो राजा होते थे, उनके जो पिता होते थे, वो उनको आश्रम में भेजते थे और आश्रम में जाके जो राजकुमार या राजकुमारी हैं वो शिक्षा ग्रहण करते थे अपने गुरु के साथ रह के, उनसे वो सीखते थे। इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपने कुछ समय पहले जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन आने के कारण जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल्स थे सब बंद हो गए। फिर हम लोग घर में थे अपने, और वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज़ को फिर से रिकॉल किया गया। रामायण को लाइव टेलीकास्ट किया, सॉरी, रामायण को टेलीकास्ट किया गया दूरदर्शन में, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो मोरल्स वैल्यूज़ हमने जो अपने बड़ों से सीखे हैं उस चीज़ को फिर से रिवाइव किया गया। और जब हमने उसको टेलीकास्ट में, अगर आपने शायद देखा हो उसको, तो आपने देखा होगा वहाँ पे कि श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के साथ, जो गुरु उनके वशिष्ठ थे, अगर मैं सही बोल रहा हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है, वशिष्ठ थे, तो वो उनके साथ जाते हैं। राजा दशरथ जी उनको भेजते हैं, राम जी को, श्री राम जी को, श्री लक्ष्मण जी को, श्री भरत जी को और शत्रुघ्न भगवान को। और वहाँ पे वो वशिष्ठ के साथ वशिष्ठ के आश्रम में जाके उनसे ज्ञान, उनसे दर्शन के बारे में, सत्य के बारे में, और काफ़ी कुछ अलग अलग जो पाठ्यक्रम हैं उनके बारे में सीखते हैं। वहाँ पे ही वो प्रशिक्षण लेते हैं तलवार चलाने का, बाण चलाने का, काम करने की शैली, अपने एक जीवन यापन कैसे किया जाता है, किस तरीके कठोरता से आज्ञा का पालन करते हुए और अपने मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कैसे एक सादगी भरा जीवन जिया जाता है, उसके बारे में उस सीरियल में दिखाया गया। तो पहले के समय की पढ़ाई में फेस टू फेस होता था, और जो विद्या भी होती थी तो आपने देखा होगा वहाँ पे आश्रम में वो कंठस्थ करवाते थे। जो भी चीज़ वशिष्ठ जी ने बच्चों में डाली, श्री रामचंद्र में, लक्ष्मण जी में, भरत जी में और शत्रुघ्न जी में, तो वो कंठस्थ विद्या के माध्यम से ही उनको ज्ञान दिया, या उनको ज्ञान दिया गया था। तो उनको वो जंगल में लेके जाते थे, वहाँ पे वो चीज़ें देख के सीखते थे। बट आज के समय में क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग की, कोरोना की प्रॉब्लम है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना ज़रूरी है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो कार्य प्रणाली थी, जो तरीका था, उसमें बदलाव लाया गया, और बदलाव लाने के कारण आज हम अपने घर बैठे बैठे अपने टीचर से कनेक्ट होते हैं। टीचर हमारे दूर हैं, हम दूर हैं अपने टीचर से, टीचर अपने घर में, हम अपने घर में। और जो ये जो टेक्निक है, इसने कहीं ना कहीं इतना हमको कंफर्टेबलनेस दिया है, इतना आराम दे दिया है, इतनी पहुंच दे दी है कि हम अपने घर बैठे बैठे अपने गुरु से संपर्क साध पाते हैं और शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। तो कंप्यूटर के आने से बहुत हमें आराम मिल गया है। जो गुरु हैं वो अपनी वीडियोस बनाते हैं, वो अपने ऑडियोज़ बनाते हैं, और वो ऑडियोज़ और वीडियोस को अपलोड करते हैं कंप्यूटर में, और जो दूरस्थ जगह पे बैठे हुए, जो दूर दूर अपने अपने शहर में बैठे हुए बच्चे हैं, वो उससे लाभान्वित होते हैं। वो उसको जो अपलोड किए हुए वीडियोस होते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो में दिए हों, या वो चाहे वो आपके इंस्टाग्राम में हो, चाहे वो ट्विटर में हो, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो आपके फेसबुक में हो, तो वो उसको देख के उससे उस कौशल को अर्जित करते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो काफ़ी कुछ बदलाव आ गया। आज हम अपने घर बैठे बैठे दूर से दूर जो 7 समुंदर पार यूनिवर्सिटी है उसमें अपना एडमिशन करा के वहाँ से विद्या प्राप्त कर सकते हैं, जो पहले शायद कभी किसी समय नहीं था, जो हम कल्पना नहीं कर पाते थे। सेकेंड, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता है ये सबसे ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा, और सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही नाजुक टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों का मिक्सचर है। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में जो कम्युनिकेशंस के प्रोसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो नेटवर्किंग है उसका कहीं ना कहीं यूज़ होता है।
नेटवर्किंग अगर आपने सुना होगा, लैन है, मैन है, वैन है, तो उससे कनेक्ट किया जाता है। इंटरनेट जो है वो आपका तार है जिससे जो सूचना है उनका आदान प्रदान हो पाता है। और कहीं ना कहीं हम जो केबल्स हैं, अलग टाइप के केबल्स हैं, ऑप्टिमल सॉरी ऑप्टिकल केबल है, लेज़र केबल है, वो अलग अलग जो केबल्स हैं हम उसका यूज़ करके यूज़ हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं। हम इसमें बैंडविड्थ का भी यूज़ करते हैं। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में यूज़ होने वाला ये शब्द है बैंडविड्थ। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ एडवांस आपने शायद जनरेशन्स भी सुनी होंगी। फर्स्ट जनरेशन आई, फिर सेकंड जनरेशन आई, फिर थर्ड जनरेशन आई, फिर फोर्थ जनरेशन आई, फिफ्थ जनरेशन आ चुकी है। हमारे देश में अभी नहीं आई, हमारे देश में 4G यूज़ हो रहा है। और इससे कुछ समय पहले एज एक टेक्नोलॉजी होती थी, वो हम यूज़ करते थे। तो काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है। और अमेरिका जैसे देश में 5G भी आ गया है, और 6G मैंने सुना है साउथ कोरिया में आ गया है। वहाँ 6G चल रहा है या 7G, कुछ ऐसे सुनने में मुझे आया है। तो इस तरीके से है। एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड एट द डोर स्टेप्स ऑफ द लर्नर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। जो शिक्षा है वो बांटी जाती है और प्रदान की जाती है डोर स्टेप्स पे। मतलब कहने का मतलब वो दरवाजे पे लर्नर्स के, जो अधिगम करता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब अधिगम करता अपने घर पे बैठे बैठे जो शिक्षा है उसको प्राप्त कर सकता है, उसको अर्जित कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, वो उसको प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कंप्यूटर की ही बदौलत पॉसिबल है, या मोबाइल, क्योंकि आजकल तो मोबाइल सबके पास रहता है। कंप्यूटर तो भी है कि घर में अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, तो वो एक जगह रखा रहेगा। और लैपटॉप है तो आप इसको कैरी कर लोगे, बट लैपटॉप भी हर इंसान हर समय नहीं ले के जा सकता है। तो ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो आराम से इंसान अपने साथ, शायद मेरे ख्याल से मैं 24 घंटे रखता है वो। बहुत ही ज़्यादा मोबाइल बहुत ज़्यादा आसान होता है कैरी करके लेके आने में। तो वो कहीं ना कहीं उसके थ्रू गूगल्स का यूज़ करके इंफॉर्मेशंस को एक्वायर कर रहा होता है, इंफॉर्मेशंस को अटेन कर रहा होता है, प्राप्त कर रहा होता है। Emergence of distance education and virtual classroom is possible due to modern methods of communication and computer। जो इमरजेंस हुआ आपका दूरस्थ शिक्षा का और वर्चुअल क्लासरूम का, ये भी पॉसिबल हो पाया, संभव हो पाया ड्यू टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्यूटर की। जो मॉडर्न मेथड्स आपके संप्रेषण के और कंप्यूटर के यूज़ हैं, उसके कारण ही वर्चुअल क्लासरूम आया। क्या आपने कभी कल्पना की थी आज से आज़ादी के समय में कि ऐसा कोई साधन होगा? उस समय जब हम आज़ाद 1947 में हुए थे, तो उस समय हमने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि आने वाले 75-80 साल में हम कुछ इस तरीके से टेक्नोलॉजी विकसित कर लेंगे जहाँ पे हम अपनी जगह पे रहेंगे और दूसरा अपनी जगह पे रहेगा, वो हमसे काफ़ी दूर रहेगा, बट हम उससे कनेक्ट उसी तरीके हो पाएंगे जैसे रियल में हम फेस टू फेस टॉक करते हैं। वो हमको देख पाएगा, हम उसको देख पाएंगे, वो हमसे बात कर पाएगा, हम उसको बात कर पाएंगे। ऐसा हम फील ही नहीं होने देंगे कि हमारे उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। हमको एकदम रियल वर्ड लगेगा वो, हमें एकदम रियलिटी, रियल इन्वायरमेंट लगेगा कि जहाँ पे हम रियल इन्वायरमेंट में एक दूसरे से आपस में संपर्क होके बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ये सब कंप्यूटर की मदद से ही पॉसिबल हो पाया कि कंप्यूटर ने चीज़ों को बहुत ईज हमारे लिए आसान कर दिया। और कम्युनिकेशन में भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता गया, समय के साथ इम्प्रूवमेंट होने लगा, सुधार होने लगा। और विकास और सुधार के कारण हम काफ़ी कुछ चीज़ें कर पा रहे हैं। और जैसे कम्युनिकेशन, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वो सभी टेक्नोलॉजी हो पाती हैं जिसमें इंटरेक्ट करते हैं हम। कंप्यूटर तो एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बताया। बट वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन अगर हमसे बात भी करे, हमको मतलब आइडियाज़ भी दें, और हम उसके साथ इंटरेक्ट करके हम दोनों मतलब उससे सीख सकें, तो वो हमारी एक तरीके से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में आपका टेलीविज़न आ जाएगा, जबकि और आपका ऑडियो भी, सॉरी, आपका रेडियो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में आ जाएगा। लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में आ जाएगा। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन
डिवाइसेस में आ जाएंगे जिसमें हम एक दूसरे से बात भी करते हैं। फिर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स। जो गुणवत्ता है हमारी कंप्यूटर की वो इम्प्रूव्ड हुई कंप्यूटर के आगमन से। एडवेंट मतलब कंप्यूटर के निर्माण होने से। आपको पता ही कंप्यूटर के जो फादर थे वो चार्ल्स बेबेज थे। कंप्यूटर हेल्प्स स्टूडेंट्स टू लर्न अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स एबिलिटी एंड एबिलिटी। कंप्यूटर मदद करता है विद्यार्थी को अधिगम करने में, वो भी उसकी आवश्यकता के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से और उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। वो अवेलेबल होगा तभी वो कर पाएगा। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कंप्यूटर फाइंड्स द फॉलोइंग एप्लीकेशन। एजुकेशन की शिक्षा की फील्ड में कंप्यूटर जो है वो फॉलोइंग एप्लीकेशन में यूज़ होता है, या कंप्यूटर के जो रोल हैं वो ऐसी ऐसी जगहों पे होते हैं, इस ऐसी इन दिए हुए निम्नलिखित जगहों पे होते हैं या उसमें उसका उपयोग होता है। तो वो सब कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में आइए हम लोग बातचीत करते हैं। एज ए टूल ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मेंटेनिंग डेटा ऑन स्कूल्स एनरोलमेंट्स, कोर्सेज, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स। वो सभी टूल जो कि एक शिक्षा में, वो सभी यंत्र जो कि एक शिक्षा में उपयोग होते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रबंधन में, जो शैक्षिक प्रबंधन में उपयोग होने वाले वो सभी टूल, जैसे कि जिससे हम स्कूल का डेटा मेंटेन करते हैं, स्कूल का जो डाटा होता है जिस माध्यम से मेंटेन उसको रखा जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर का ही यूज़ होता है। इनरोलमेंट्स हो गया, कोर्सेज हो गए, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, कौन कितने अलग प्रकार के कोर्स हैं, उस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी, उस कोर्स में क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या सब टॉपिक हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। एग्ज़ामिनेशन की पूरी लिस्ट, उसके बारे में पूरा टाइम टेबल उसका डेट, उसका डे, एग्ज़ामिनेशंस का उसका टाइमिंग, रिज़ल्ट्स की पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी एक स्कूल हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, वो जितने भी अपने इंपॉर्टेंट और जो क्रूशियल वर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड के माध्यम में ऑनलाइन वे में स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि फ्यूचर वे में उसको कभी अगर फिजिकल फॉर्म में होगा, कोई जल गया, कुछ हो गया, या कहीं फाइल गायब हो गई, तो कम से कम अगर ऑनलाइन में उन्होंने बैकअप बना के रखा होगा तो वो वहाँ से आराम से उसको फिर से रिस्टोर कर लेंगे। जो कि फिजिकल फॉर्म में कितना कोई लिखेगा, कितना बना के रखेगा, क्योंकि फिजिकल फॉर्म की चीज़ें जल गई या कुछ अलग हो गई, कुछ भी हो गया। जबकि कंप्यूटर में जो एक आपकी सुविधा होती है वो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग वो सुविधा होती है जहाँ पे कोई भी आपके जो डेटा होते हैं उसको एक वर्चुअल प्लेस होती है स्टोर करने की, जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो कि गूगल की है, वो आपको प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अदर्स कंपनी भी हैं, ओरेकल है, वो भी आपको प्रोवाइड कराता है। तो आपका इसके अलावा फायरफॉक्स है, एप्पल है, तो ये सब आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो वहाँ पे आप अपना स्टोर कर लेते हो। वो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब एक स्टोरेज प्लेस होती है जहाँ पे आपका वर्चुअली वो पूरा डाटा स्टोर हो जाता है, और जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको सर्वर से कनेक्ट होना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी रहते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में फ़ीस, हर बच्चे की फ़ीस कितनी है, हर 3 महीने में फ़ीस जमा होती है, ईयरली बेसिस पे फ़ीस जमा होती है, वार्षिक महीने पे, या आपके मंथली अगर फ़ीस जमा होती है तो उसके बारे में पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं। लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स पूरे आपके ऑनलाइन मेंटेन होते हैं, क्योंकि एक स्कूल अपना पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर बना के रखता है। जो कल मैंने आपको कंप्यूटर प्रबंधन अधिगम बताया था, तो ये उसी का पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड, एज एन एड टू डिस्प्लेइंग ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टू ऑफ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स एंड एनिमेटेड पिक्चर्स। ये एक हेल्प भी हमको प्रोवाइड करता है, हमको मदद भी, सहायता भी प्रदान करता है डिस्प्ले करने में ऑडियो विजुअल एड्स को। तो इसमें जो आदर्श और दृश अनुदेशन सामग्री है, प्रेजेंटेशंस की, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की और एनिमेटेड पिक्चर्स की, वो भी आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर हेल्प करता है। क्योंकि कंप्यूटर में अगर हमको मान लीजिए छोटे बच्चों को कोई एनिमेशन दिखा के अगर हमें लर्निंग करानी है, क्योंकि छोटे क्लास में जो बच्चों को सिखाया जाता है
तो वो रोल प्लेइंग करा के भी सिखाया जाता है और मतलब पिक्चर्स दिखा के भी सिखाया जाता है। उस पिक्चर के माध्यम से कहीं ना कहीं वो देखने के बाद वो सब चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर उसकी वो नकल भी करते हैं। आपने सोशल लर्निंग का एक सिद्धांत पढ़ा होगा बेंडूरा का, कि हम जो बच्चा है वो समाज से सीखता है, तो बड़े को देख के सीखता है और वो उनकी नकल करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ये उसी को ही डिस्क्राइब कर रहा होता है कि प्रेजेंटेशंस में वो स्लाइड्स बना दी गई। अगर मान लीजिए आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन देना है तो आप स्लाइड्स बना के उसको एक्सप्लेन करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपके अपने पॉइंट्स को आप अच्छे से डिस्क्राइब भी कर लोगे और बाकी लोगों को नज़र भी आएगा आप क्या बोल रहे हो, तो वो दिखाई देगा आपके प्रोजेक्टर पे, जो प्रोजेक्टर लगा होगा उस सेमिनार में या वर्कशॉप में, तो उससे वो समझ जाएंगे। उसी तरह के स्कूल वाले भी पिक्चर्स दिखाते हैं बच्चों को समझाने के लिए। एक थिएटर रूम होता है, वहाँ बच्चे जाते हैं अपने शिक्षक के साथ, शिक्षक उनको फिल्म दिखाता है, फिल्म दिखा के उनको वो कहीं ना कहीं उससे सीखने की वो जो पिक्चर भी होती है वो कहीं ना कहीं सीख देने वाली होती है कि उनकी जो चरित्र है, उनके जो मूल हैं, उनके जो सोसाइटी समाज को लेके उनकी जो जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं उसके उनके अंदर वो इनकलकेट हो, उनके अंदर वो आए। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन मटेरियल और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स एंड एनिमेटेड पिक्चर्स उसी का पार्ट हो जाएंगी। कोई कार्टून बना के उन्होंने उस कार्टून की मदद से 3-4 कैरेक्टर बनाए, उस कैरेक्टर में कहीं ना कहीं हर एक कैरेक्टर के लिए लर्निंग उन्होंने बना दी कि उन्होंने जो भी ऐड किया, ऐड करने से उनको लास्ट में ये सीख मिलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि वो बच्चे देख के उस चीज़ को समझेंगे और वो परिवर्तन अपने व्यवहार में लेके आएंगे, ताकि व्यवहार में परिमार्जिन हो सके, बदलाव आ सके। एज ए मीन्स टू access information like encyclopedia, concept, research papers, etc. through internet। ये माध्यम होता है सूचना तक पहुंचने का, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया की हेल्प से हम किसी टॉपिक के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक हमारा इंटरनेट एज ए लर्निंग एज एन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, इंटरनेट एज एन इंफॉर्मेशन रिसोर्स होगा, तो उसमें मैं आपसे कह दूंगा कि ऐसा है कि मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप इंटरनेट एज एन इंफॉर्मेशन रिसोर्स के बारे में आप लिखिए अलग अलग जगहों से और मुझे सबमिट कीजिए ऑनलाइन। वो आपका असाइनमेंट उस पर मिलेगा। तो आप उस टॉपिक के बारे में जो इंफॉर्मेशन सूचना है वो सर्च करोगे तो शायद आप इंसाइक्लोपीडिया से उठाओगे। कंसेप्ट्स के बारे में जानने को और मतलब उसके बारे में क्या लिखना है, तो कंसेप्ट्स के बारे में आप पता करोगे। उस प्रत्य के बारे में रिसर्च पेपर्स के बारे में किसी ने कुछ अगर इस टॉपिक के बारे में लिखा हो, इंटरनेट एज एन इंफॉर्मेशन सोर्स, तो उसके बारे में करोगे। और थ्रू इंटरनेट में ये सब चीज़ें आप इंटरनेट से पता करोगे। बहुत से लोग होते हैं, उन्होंने किसी टॉपिक के बारे में कुछ अपने पेपर्स या जर्नल्स लिखे होते हैं और वो उसको अपलोड कर देते हैं, ताकि अपलोड होने पे कोई भी उसको कट कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएगा, वो कॉपीराइट होएगा और वो सब जब हर जगह फैल जाएगा तो वो जो जर्नल है, वो आर्टिकल है, उस व्यक्ति का ही माना जाएगा। और फिर अगर उसको कोई कट कॉपी पेस्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं उस पर प्लेगरिज्म का आरोप भी लग जाएगा। तो ऐसा किया जाता है। एज एन एड टू इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम टीचिंग, टेस्टिंग एंड स्कोरिंग एक्सेट्रा। ये एक एड है, एक सहायता है अनुदेशन की, वो भी प्रोग्राम टीचिंग में। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था प्रोग्राम टीचिंग अनुक्रमित अनुदेशन है, तो ये उसमें अनुदेशन देने का एक सहायता भी प्रदान करता है कि किस तरीके से हमको अनुदेशन देना चाहिए अभिक्रमित प्रोग्राम में। टेस्टिंग में भी इंस्ट्रक्शन देने में मदद करता है। टेस्टिंग की जब बात आती है तो टेस्टिंग में आप जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं या टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, तो ऑनलाइन टेस्ट में आपकी कॉपी जचेगी। उसके बाद आपको ऑनलाइन ही आपके नंबर भी देने में, इसमें कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन ही नंबर मिलेंगे। आपका रिज़ल्ट आएगा तो वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग उस वे से भी यूज़ होता है। और एंड स्कोरिंग करने में भी यूज़ होता है। स्कोरिंग का तो एग्ज़ाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हो, जब आपको मान लीजिए एक कोई विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी नहीं, उसको आप मान लीजिए कोई एक मार्केटर है, वो अपने वो कोई प्रोडक्ट सेल्स करता है, उस प्रोडक्ट को वो बेचने के लिए आपको वो एक फॉर्म देता है। तो उस फॉर्म से वो आपके जो बिहेवियर है, आपके जो व्यवहार है, उसको पता करने के लिए कि आपकी क्या चॉइस है उस प्रोडक्ट को लेके, उसको जान उसके
उसको अध्ययन करने के लिए आपसे वो पूरा फॉर्म भरवाता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर मतलब एक कंज्यूमर का बिहेवियर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके क्या है, उसके हिसाब से वो उस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन करेगा, उस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करेगा। क्योंकि आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, जो भी कॉम्स के स्टूडेंट्स होंगे। इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, फिर आपकी स्टेज और बढ़ती चली जाती है, मेच्योरिटी पे जाती है, फिर डिक्लाइन होती है। तो अब मेच्योरिटी से डिक्लाइन की तरफ मूव ना करे तो प्रोडक्ट वो रिसर्च करता है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है उस प्रोडक्ट का, ताकि वो सस्टेनेबिलिटी उस प्रोडक्ट की बनी रहे आगे आने वाले समय में भी, वो उसका ग्राफ नीचे की ओर नहीं जाए। तो उस तरीके से वो स्कोरिंग करके उसके बेसिस पे ये पता करने की कोशिश करता है कि जो कंज्यूमर है वो कितना उस प्रोडक्ट को लेके उनका जो परसेप्शन है वो क्या है, और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कितनी बनी रहेगी, कितने समय तक ये प्रोडक्ट्स इसकी डिमांड करते रहेंगे, उसको खरीदते रहेंगे, और आने वाले समय में इसका कोई अगर सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या इसका कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है तो इसको छोड़ देंगे कि इसको तो भी लेते रहेंगे। तो उस हिसाब से इसको सस्टेन करने के लिए वो स्कोरिंग करके उस प्रोडक्ट्स पे चेंजेस करता रहता है। तभी आपने देखा होगा बाइट्स हो गई या बहुत से प्रोडक्ट्स हो गए हैं उनमें उसके उसका अपग्रेड वर्जन आने लगता है। आपने बाइट में देखा था, बाइट में स्प्लेंडर आई, फिर स्प्लेंडर प्लस आई, फिर सुपर स्प्लेंडर आई, इस समय स्प्लेंडर आई चल रही है, और फिर आने वाले समय में कुछ समय बाद स्प्लेंडर का एक और वर्जन आने वाला है, क्योंकि स्प्लेंडर को काफ़ी कुछ सहारा भी किया है मार्केट में। फिर नेक्स्ट, as an aid to self learning using structured packages of learning material and self evaluation। ये एक एड की तरह की एक सहायता प्रदान करता है सेल्फ लर्निंग के लिए। स्वयं हम अधिगम करते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर्ड पैकेजेस ऑफ लर्निंग। जो स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर मतलब जो एकदम बने बनाए होते हैं, आप मतलब उस पर जो भी आप उस पर इंस्ट्रक्शन दोगे, अनुदेशन दोगे, उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिप्लाई करेगा। कल जैसे मैंने आपको एटीएम मशीन का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे आप एटीएम मशीन भी लिख सकते हो, और भी चीज़ें होती हैं बहुत। मेट्रो सिटी में अगर आप में से कोई गया होगा तो वहाँ पे अगर कोल्ड ड्रिंक निकालना है, या आपके मिल्क बूट्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक बूट्स होते हैं, तो इसमें आप कॉइन डालते हो, कॉइन डालने के बाद जो कॉइन डालते हो उसके हिसाब से उतना मिलीलीटर आपकी पेप्सी या आपका जो मिल्क होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आ जाते हैं। ये आपको एरोप्लेट्स एयरपोर्ट में मिल जाते हैं ऐसी चीज़ें आपके। स्ट्रक्चर्ड पैकेजेस ऑफ लर्निंग मटेरियल, तो स्ट्रक्चर पैकेजेस होते हैं लर्निंग मटेरियल के, वो सीडी के फॉर्म में भी हो सकते हैं। उसमें बने बनाए इंस्ट्रक्शंस होते हैं पूरे आपके एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं। उसके बाद आप उसको चलाते हो तो उसके हिसाब से वो चीज़ें बोलते चले जाते हैं। एंड सेल्फ इवेल्यूशन, और उसका सेल्फ इवेल्यूशन भी कर सकते हो। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे और आपको आता जाएगा, तो फिर आप अपने आप से अपना मूल्यांकन करते जाओगे कि आपने अब तक कितना अधिगम किया है, आपका अधिगम का लेवल कहाँ तक है, स्तर कहाँ तक पहुँचा है। इससे आपको अपने अधिगम के बारे में जानकारी होती चली जाएगी। एज ए मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन ऑफ एजुकेशन मटेरियल्स, ये माध्यम होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन का एजुकेशन मटेरियल्स का। तो ये तो आपको पता ही है, कंप्यूटर होता ही है। लेसन्स हैं, आइडियाज़ हैं, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। आप लेसन्स का भी इंटरेक्शन है। अपने जैसे कल मैंने प्रोग्राम लर्निंग के बारे में बताया था, अनुक्रमित अनुक्रमित अनुदेशन में। तो उसमें आपका एक पैराग्राफ लिखा रहता है, उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके नीचे दिए हुए उसके सवाल होते हैं, उस सवाल को लिखने के जवाब भी दिए होते हैं। उसी में हम जब जवाब लिखते हैं तो वो फिर सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद फिर वो अपने आप से प्रोसेस करता है कंप्यूटर, और हमको बताता है हमारे कितने सवाल सही हैं, कितने गलत हैं। जो हमारे सवाल गलत होते हैं, या तो वो सवाल को फिर से करने के लिए हमसे कहता है, तो उसके लिए हम फिर से वापस जाके उस फ्रेम को या पैराग्राफ को पढ़ के उसका जवाब देते हैं। नहीं तो वो क्वेश्चन चेंज कर देता है, और क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी कुछ मिलता है जो उसके पहले का क्वेश्चन होता है, उसी तरीके उसी का फॉर्मेट होता है। अगर मान लीजिए गणित का सवाल है तो फॉर्मेट वैसे ही रहेगा, नंबर चेंज कर देगा, ताकि वो ये देखेगा कि आपने जो गलती की थी, गलती करके जो आपने उसको सीखा, तो उस चीज़ में आप कितने पारंगत हो पाए, कितना आपने उससे ज्ञान प्राप्त किया है, कितना आप उसमें मास्टरी हासिल कर पाए हो, वो बदलाव को देखता है। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स हो गया, बिटवीन पर्सन्स थ्रू ईमेल और चैटिंग, और ये सब आपका लोगों के बीच में होता है, ईमेल और चैटिंग के थ्रू होता है। एज ए सोर्स ऑफ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, ये आपका स्रोत होता है एजुकेशनल शैक्षिक सूचना का, चाहे इंस्टीट्यूशंस का, कोर्सेज, एलिजिबिलिटी कंडीशन। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपने देखा होगा जब आप बीएड के लिए
अप्लाई करने गए थे तो आपने अपने दोस्तों से तो पूछा ही था, वो आपने ऑफलाइन पूछा ही पूछा, जितने भी लोन आप लोगों को जानते हो जिनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट है, या आप सॉरी जितने जिनसे भी आपका कॉन्टैक्ट है या आपके संपर्क में है। इसके अलावा आपने गूगल में सर्च करके भी जानकारी इकट्ठी की होंगी कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं इलाहाबाद के अंदर जो कि बीएड कराते हैं, और उनकी क्या फ़ीस है, और वहाँ पे क्या फैसिलिटी है, क्या वहाँ का स्टाफ है, वो कितना दूर है हमारे घर से, उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या सवाल आते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, और क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो ये सब आपने जानकारी ऑनलाइन इकट्ठा की, तो ये पॉइंट उसी को दर्शा रहा है। अबाउट इंस्टीट्यूशन कोर्सेज एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज ए मीडियम फॉर मास एजुकेशन, ये माध्यम होता है, मास एजुकेशन का भी होता है। एक ही टीचर अपना वीडियो बनाता है, वीडियो बना के उसको अपलोड कर देता है कंप्यूटर की वेबसाइट पे या यूट्यूब नेट पे अपलोड कर देता है। उसके बाद उसी एक टीचर का जो वीडियो होता है वो सभी बच्चे देख रहे होते हैं अपने अपने घर से, वो अलग अलग जगह पे मौजूद होते हैं, अलग अलग शहर में होते हैं, या पूरी दुनिया उसको देख रही होती है। आप यूट्यूब वीडियोज़ देख लीजिए, यूट्यूब वीडियोज़ आप किसी का भी देख लीजिए जो बहुत फेमस है, उसकी वीडियोज़ अगर आप उसकी वीडियोज़ के वॉचिंग व्यूज़ देखोगे तो वो लाखों में जाते हैं, तो वो पूरी दुनिया उसको देख रही होती है। प्लानिंग एंड प्रिंटिंग इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम्स लाइक CI एंड CBT प्लानिंग भी करते हैं, प्रिंट भी करते हैं। जो इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम है जो कि खुद एक इंसान, एक विद्यार्थी, एक अधिगम करता अपने से सीखता है, जैसे कंप्यूटर आधारित इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, एंड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण है। मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, वो मॉनिटर भी करता है कंप्यूटर स्टूडेंट की प्रोग्रेस, वो पूरा रिकॉर्ड बना के रखता है कि हाँ बच्चे में कितना चेंज हुआ है, क्या क्या चीज़ें उसमें आई हैं। इसका एग्ज़ाम्पल जैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा या ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो पूरा जो आपका रिकॉर्ड्स है वो ऑनलाइन मेंटेन करके एक जगह पे स्टोर होगा, एक सर्वर पे। उसके बाद वहीं से उसको एसेस करके फिर से उसको उसको फिर से अपलोड करके फाइल को या एसेस करके फाइल को कंप्यूटर के मॉनिटर में देखा जा सकता है कि वो बच्चे का कितना प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी लर्निंग में कितना चेंज आ रहा है, कितना उसका एजुकेशनल अचीवमेंट शो कर रहा है। फिर कंपाइलिंग टेस्ट फॉर इवेल्यूशन, कंपाइल करता है टेस्ट इवेल्यूशन के लिए भी, इकट्ठा करता है कंप्यूटर में इवेल्यूशन मूल्यांकन करने के लिए भी। ऑनलाइन पूरा एक बच्चे का चार्ट बनाया जाता है, जैसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स या कुमुलेटिव रिकॉर्ड आपके सेकंड सेमेस्टर में था, तो वहाँ पे आप जो टीचर होता है वो हर एक बच्चे का पूरा डॉक्यूमेंट बना के रखता है। उस डॉक्यूमेंट में पूरा उसके बारे में रहता है कि क्लास में क्या उसका परफॉर्मेंस रहता है, फील्ड में जाता है तो क्या परफॉर्मेंस रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है, उसके स्कोर्स, उसके एग्जामिनेशन मार्क्स, उसकी एक्टिविटी में जो वो पार्टिसिपेट किया होता है, तो उसके बारे में पूरा उसका जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपके एक तरीके से इवेल्यूशन करने में उस बच्चे को बहुत उसका मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। यूजिंग इंटरनेट फॉर डिस्टेंस लर्निंग, इंटरनेट का यूज़ करता है वो डिस्टेंस लर्निंग के लिए, क्लासेस उसको लेनी, वो अपने घर में बैठा है मान लीजिए, और वो मुंबई से या चेन्नई से पढ़ रहा है, किसी यूनिवर्सिटी से मुंबई चेन्नई के, तो वो और रहने वाला वो प्रयागराज का है, तो वो अपने घर बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से वो दूरस्थ शिक्षा को लेता जाता है। स्टोरिंग डेटा फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़, स्टोर करता है डेटा फाइल्स को और सूचना को अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको वो सेव करके रख लेता है, और जब उसकी ज़रूरत होती है फिर से रीअसेस कर लेता है। कंप्यूटर असिस्ट इन करिकुलम डेवलपमेंट एंड मेक मॉडिफिकेशंस इजी, कंप्यूटर मदद करता है करिकुलम डेवलपमेंट में, पाठ्यक्रम का विकास करने में जो कंप्यूटर होता है वो मदद करता है, सहायता करता है, एंड मेक मॉडिफिकेशन इजी, और उसमें बदलाव भी आसानी से कर देता है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन बना के रखेंगे तो कभी भी उसमें हमारा आसानी से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। मगर अगर हमने वही फिजिकल फॉर्म में बना के रख दिया है तो उसको बिना काटे पीटा किए हुए हम नहीं कर पाएंगे, जबकि कंप्यूटर में ये फैसिलिटी होती है कि अगर आप कोई भी चीज़ उसमें ऐड ऑन करना चाहते हो तो बिना कुछ उसमें ख़राब किए हुए फिर उसमें चीज़ें जोड़ भी सकते हो आसानी से, और चीज़ें हटा भी सकते हो आसानी से। कंप्यूटर असिस्ट इन एजुकेशन रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्वे रिपोर्ट, कंप्यूटर आपको हमको मदद सहायता प्रदान करता है एजुकेशन शैक्षिक
शोध करने में हमको कंप्यूटर हेल्प करता है। जो लोग पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पूरा जो अपना प्रोजेक्ट होता है और सिनॉप्सिस होती है या रिसर्च प्रपोजल होता है वो अलग अलग जगह से जो आप कंप्यूटर में जितनी भी सूचना प्रदान की गई हैं, जितने भी आपके आंकड़े दिए हुए हैं या डेटा दिया हुआ है, उन सबको वो कंपाइल करता है वो शोधार्थी, और उसके बाद करने के बाद वो कंप्यूटर में उसको कंपाइल करने के बाद उसको टाइप करता है, टाइप करके लिखता है और उसको वो सेव करके रखता है। तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं उसको मदद करता है। ये सब चीज़ें, ये सब कार्य तभी करना उसके लिए संभव हो पाता है जब वो कंप्यूटर उसके पास हो, क्योंकि कंप्यूटर्स में ही वो चीज़ों को स्टोर करके फिर उसको एक पूरे स्ट्रक्चर वे में पूरे एक क्रम में लिखता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। और सर्वे रिपोर्ट को भी वो ऐसे ही करता है, सर्वे करता है, उसकी रिपोर्ट को भी वो बनाता है। कहीं सर्वे वो करके आया, करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट को पूरा वो टाइप करता है कंप्यूटर में, करने के बाद उसको सेव करके उसका हार्ड कॉपी निकलवा के वो उसको सबमिट करता है। कंप्यूटर्स हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स। कंप्यूटर मदद करता है स्कूल के रिकॉर्ड्स को मेंटेन्स करने में। एक जो आपका अध्यापक होता है तो कंप्यूटर के जितने भी स्कूल के रिकॉर्ड्स होते हैं वो कंप्यूटर पे स्टोर करके वो अपने पास रखता है। आपने ही देखा होगा अपने यहाँ जो ऑफिस हैं, ऑफिस में सतीश सर जी हैं, तो वो जितने भी अपने स्कूल अपने कॉलेज के रिकॉर्ड्स होते हैं वो कंप्यूटर पे स्टोर करके रखते हैं और उसी के थ्रू वो सूचना को प्रदान करते हैं। कंप्यूटर्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग स्केड्यूल्स ऑफ डेली एक्टिविटीज़। जो कंप्यूटर है वो हमें मदद करता है स्केड्यूल्स बनाने में, रोज़ के एक्टिविटीज़ के बारे में, रोज़ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या क्लासेस होंगी, रोज़ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, किस समय में कौन सा क्लास होगी, उसके बारे में पूरा कंप्यूटर में रिकॉर्ड्स मेंटेन करके जो टीचर है वो रख सकता है। कंप्यूटर्स कैन प्रोवाइड न्यू एंड इनोवेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। कंप्यूटर हमको प्रोवाइड करता है नए और इनोवेटिव इंफॉर्मेशन, जो अनोखी सूचना होती हैं और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में वो हमको कंप्यूटर से मिल जाती हैं। क्योंकि कंप्यूटर दुनिया भर की जितने भी जानकारी या सूचना होती हैं कंप्यूटर के अंदर स्टोर होते हैं एक सर्वर में, और वो सर्वर का एड्रेस हम टाइप करते हैं, एड्रेस टाइप करने पे वो सर्वर के एड्रेस में पहुंचता है और सर्वर के एड्रेस से वो फाइल को हम एक्सेस करके अपने पास उसको मनवा लेते हैं। कंप्यूटर्स हेल्प्स इन प्रेजेंटेशन सच एज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड सर्व एज टीचिंग एड्स। कंप्यूटर हमें मदद करता है प्रेजेंटेशंस बनाने में, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम कंप्यूटर की हेल्प से बनाते हैं। कंप्यूटर में MS पावर पॉइंट नाम का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं, स्लाइड्स दी होती हैं उसमें उसमें हमको न्यू स्लाइड्स दी होती हैं, रेडीमेड स्लाइड्स भी दी होती हैं, और उसमें हम अपने टॉपिक को लिख के पूरा प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और सर्व एज टीचिंग एड्स, और इसको हम अपने शैक्षिक सहायता सामग्री में यूज़ भी करते हैं। उसको कोई टॉपिक हमें पढ़ाना होता है तो हम वही प्रेजेंटेशन की हेल्प से उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं अपनी क्लास में बच्चों के साथ। एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस कैन बी गिवन विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। जो शैक्षिक और जो वोकेशनल गाइडेंस हैं वो दिए जाते हैं कंप्यूटर की मदद से। शैक्षिक गाइडेंस भी आते हैं कि मतलब कि आप हम मान लीजिए बच्चा क्लास 9 में है और उसका जो उसके जो मार्क्स हैं काफ़ी बहुत अच्छे हैं, और मगर उसका टेस्ट कराया जाता है कंप्यूटर्स में। कुछ ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जिससे उसकी कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट को, रुचि को, उसके एप्टीट्यूड, उसकी जो क्षमता है उसको आकलन किया जाता है, और उसके रुचि और जो एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से उस सब्जेक्ट का चॉइस किया जाता है। भले ही वो बहुत तेज़ है मगर अगर उसकी रुचि पाई गई कि वो उसकी रुचि मान लीजिए भूगोल सब्जेक्ट में, और उसको ऐसा लगता है टीचर को आगे जाके कि बहुत बड़ा मौसम वैज्ञानिक बन सकता है, और तो वो उसको एज अ जोग्राफी सब्जेक्ट्स को लेने के ऑप्ट करने के लिए कहता है। और क्योंकि वो काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन अगर उस सब्जेक्ट्स के बारे में उससे रहता है तो उस टेस्ट से समझ में आ जाता है, और ताकि उसको सही तरीके से गाइडेंस से उसको सही उसके सब्जेक्ट को वो चूज़ कर पाए और आगे जाके उसमें ही अपना बेस्ट रिज़ल्ट दे पाए, बेस्ट एफर्ट दे और रिज़ल्ट रिसीव कर पाए। वोकेशनल गाइडेंस के थ्रू, वो भी कंप्यूटर के थ्रू वोकेशनल गाइडेंस भी दिया जाता है। दूर बैठे हुए जो काउंसलर्स होते हैं या कैरियर काउंसलर्स होते हैं वो
अपने से काफ़ी फार अवे दूर जगह पे स्टूडेंट्स बैठे हुए उनसे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करके उनको उनकी जो नीड्स होती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उनकी कन्फ्यूज़न होती हैं, उसको सॉर्ट आउट करता है। सॉर्ट आउट करने के बाद उनको दूर करता है, और दूर करने के बाद उनको सजेस्ट करता है, और या उनके जो भी एजुकेशन, जो उनकी क्वालिफिकेशन उस बेसिस पे वो उनको कैरियर्स के सुझाव देता है, डिफरेंट कैरियर्स के बारे में बताता है कि इस फील्ड में आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे और इसके थ्रू आप बढ़ते हुए अपने करियर को ग्रोथ की ओर लेके जा पाओगे। तो ये सब कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मदद से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाता है। Computers can provide flexibility in learning in terms of time, space and difficulty level of learning material। जो कंप्यूटर है वो हमको फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन देता है अधिगम में, और वो भी अधिगम में जो लचीलापन हमको कंप्यूटर देता है वो हमको समय के हिसाब से देता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से लर्निंग कर सकते हैं। कंप्यूटर में कोई टाइम का कंडीशन नहीं होता है, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है कि आपको इसी समय क्लासेस करनी है, इसी समय ये काम करना है, या इसी समय इस चैनल में ये शो आएगा, या इसी समय आपको बाहर जाके ये सामान लेना है या चीज़ें करनी है। कुछ ऐसा कोई हमारे ऊपर, हमारे अंदर बाध्यता नहीं होती है जब हम कंप्यूटर से कोई चीज़ सीख रहे होते हैं। हम अपने हिसाब से सीख सकते हैं उसको। जब भी हमें टाइम रहता है हम बैठते हैं और अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर से फिर हमको उसका एज एन रिटर्न उस सब्जेक्ट की नॉलेज को गेन कर पाते हैं। एंड डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ लर्निंग मटेरियल, और डिफ़िकल्टी लेवल जो लर्निंग मटेरियल है उसको भी हमको अपने हिसाब से, हमारा जो पेस है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, हमारा जो आईक्यू लेवल है, हमारा जो इमोशनल क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को समझ के और उस तरीके से कर सकते हैं अपने वे में, अपने वे से। पूरी फ्रीडम रहती है अपने वे से चीज़ों को समझ के। जिस तरीके से हम आसानी से सीख सकते हैं उस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, और स्पेस भी हमको मिलता है। कंप्यूटर्स आर मोटिवेटर्स, कंप्यूटर्स हमारे लिए एक तरीके से प्रेरणा का काम करते हैं, प्रेरक होता है कंप्यूटर, एक तरीके प्रेरक होता है, क्योंकि वो हमको एक ऑप्शन देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे हम जाके चीज़ों को सीख सकते हैं। उसका यूज़ करके हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, अपनी सोच में, अपने व्यक्तित्व, अपना जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, उसमें हम एकदम एकदम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और कुछ ना कुछ डेली हम उससे अपने अपने अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स, कॉम्पिटेंसी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। एवरी पीस ऑफ न्यू नॉलेज गेन थ्रू कंप्यूटर्स वर्क एज मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स। कोई भी जानकारी, नया ज्ञान जो आपने सीखा है कंप्यूटर के में काम करके, वो आपका एज ए मोटिवेशन होगा, एक आपका खुद का पर्सनल अचीवमेंट होगा। कहीं ना कहीं वो आपका एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर आपको लेके जाएगा। आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने इस चीज़ पे काम किया, इस चीज़ को काम करके इस काम के बारे में मुझे योग्यता हो गई, दक्षता हो गई, और मुझे अब खुशी हो रही है कि मैं अब ये चीज़ कर अपने से कर सकता हूँ, दूसरों को भी बता सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच में बदलाव लाता है कंप्यूटर। Program learning through computers provide immediate feedback with helps स्टूडेंट्स लर्निंग। जो प्रोग्राम लर्निंग होता है कंप्यूटर के थ्रू, जो अनुक्रमिक अनुदेशन हम कंप्यूटर थ्रू करते हैं, वो हमें इमीडिएट फीडबैक देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम पैराग्राफ को पढ़ के उसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हैं, और आंसर्स लिखने के बाद सबमिट करते हैं, तो तुरंत ऑन द स्पॉट कंप्यूटर हमें उसके आंसर्स दे देता है। जो हमने लिखे हैं क्वेश्चंस, जो हमने क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, वो वाकई में सही है कि नहीं है, उसमें क्या उस कोई कुछ आंसर्स गलत तो नहीं है, या पूरे गलत तो नहीं है, या कुछ या सभी सही तो नहीं है। तो ये हमको कंप्यूटर बताता है, जिससे हम अपने उस चीज़ को और अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे हमको कंप्यूटर इमीडिएट फीडबैक दे रहा होता है, वो हमें तुरंत मिलता है। विच हेल्प्स स्टूडेंट लर्निंग, जो मदद करता है विद्यार्थी के अधिगम में। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर इज कॉस्ट इफेक्टिव, जो लर्निंग कंप्यूटर के थ्रू है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता माध्यम है। ये आसानी से हम कम खर्च में चीज जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये तो ये कंप्यूटर की भूमिका। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये कंप्यूटर की भूमिका हैं शिक्षा में। और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है बच्चों, वो ख़त्म होता है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम एक नए टॉपिक को लेके बात करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप अपने सवाल मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या इसी वीडियो में कमेंट करके थ्रू पूछ सकते हैं। और चीज़ें करते जाइए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चले जाइए, और क्योंकि आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप ही का लॉस है।
क्योंकि मैं तो एक एक करके टॉपिक करता जा रहा हूँ और आप वीडियो अपने हिसाब से देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सीख नहीं पा रहे हो। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो आपकी भलाई के लिए बना रहा हूँ, मगर अगर आप मेरी वीडियोस को देखते नहीं हो तो वो अपना ही लॉस कर रहे हो, क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हो वो किसी कारणवश कर रहे हो ना। आप ये कोर्स करके आप चाहते हो कि आपकी नौकरी लगे, आप किसी स्कूल में जाके पढ़ाओ, वहाँ पे जो अपना ज्ञान है उस ज्ञान को आप प्रदान कर पाओ, बच्चों को वो बांट पाओ। तो जब आप ज्ञान ही नहीं अर्जित करोगे तो वो ज्ञान को आप बांटोगे कैसे? तो ये चीज़ तो आपको तय करना है कि आपको सीखना है कि नहीं सीखना है। फिर आप चाहते हो सरकारी स्कूल में आपके शिक्षक की नौकरी लग जाए, आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हो, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आपके पास अगर समय ही नहीं है, आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है कि आपको सब आता है, तो बात अलग है। तो ये आपकी भलाई के लिए है। आप वीडियोस को देखोगे तो इसको सीखो, उसको उसको सुनोगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपको नया आएगा, कुछ तो आपको नया ज्ञान अर्जित होगा। उस नए ज्ञान को अपने जो पढ़ने वाले ज्ञान उसके उसके साथ बैठ के उसको जोड़ोगे तो और कुछ नया भी सीख जाओगे। तो वीडियो को देखने का ये फ़ायदा है। इसलिए बाकी तो कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकता है। जो जो ज्ञान होता है वो इंसान अपनी स्वयं स्वयं इच्छा से सीखता है। A learner can learn by its own wish. मैं आशा करता हूँ शायद आपको मेरी बात कही हुई समझ में कुछ आ गई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जो वीडियोज़ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको व्यूज़ करें, उसको वॉच करेंगे एक बार में ही, और अपना टाइम ये नहीं है कि मैंने उसको बना दिया और उसके बाद काफ़ी समय बाद देख रहे हैं, उसी ऑन द स्पॉट देखेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो सी यू ऑल टू द नेक्स्ट वीडियो।